سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان کس منزل پر سوار تھے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر انسان اوپر والی منزل پر سوار تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے نے آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت کتنی تھی؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی عمر انتقال کے وقت 30 برس تھی۔ سوال: مکہ کا وہ کون سا پہلوان تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا؟ جواب: مکہ کا پہلوان ابو رکانہ بن عبد یزید تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا۔ سوال: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے کس بیٹے کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا؟ جواب: حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پالا تھا۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے کس بیٹے کی اولاد سے تھے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد سے تھے۔ سوال: غزوہ خندق کا دوسرا نام احزاب کیوں ہے؟ جواب: اس لیے کہ تمام کفار عرب نے متحد ہو کر اسلام کے خلاف یہ جنگ کی تھی۔ سوال: جامع قرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جامع قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے۔ سوال: سب سے پہلے منبر پر خطبہ کس نبی نے دیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے منبر پر خطبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کس چیز کا کام کرتے تھے؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔
सवाल, सबसे पहले काबा का तवाफ किसने किया था? जवाब, सबसे पहले काबा का तवाफ फरिश्तों ने किया था। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज में बुलाने पर किस सूरत में वईद सुनाई गई है? जवाब, इसके अमाल ज़ाया जाएंगे। सवाल, कौन सा फरिश्ता लोगों को हशर के मैदान में बुलाएगा? जवाब, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम लोगों को हशर के मैदान में बुलाएंगे। सवाल, दुनिया में मौजूद वो कौन सा पत्थर है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा? जवाब, दुनिया में मौजूद वो पत्थर हजर अस्वद है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन क़यामत के दिन पहाड़ के बराबर हो जाएगा। सवाल, अरब का मशहूर मेवा क्या है? जवाब, अरब का मशहूर मेवा खजूर है। सवाल, रदीफ के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, रदीफ के लग़वी मायने घुड़सवार के पीछे बैठने वाला है। सवाल, कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को इसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब, कुरान मजीद में अबू लहब को इसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल, कौन से नबी को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ आती थी? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज़ आती थी। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा किस सूरत में आया है? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज़्यादा सूरत हूद में आया है। सवाल, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया इस वक्त इन दोनों की उम्र क्या थी? जवाब, जिस वक्त काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया इस वक्त काबिल की उम्र 25 साल और हाबिल की उम्र 20 साल थी। सवाल, सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले कौन से नबी हैं? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम सबसे पहले इल्म नजूम को जानने वाले हैं। सवाल, किस काफर जादूगर की परवरिश हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने की? जवाब,
موسیٰ سامری جادوگر کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی؟ سوال: سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سبکتگین فوج میں جنرل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ویل مچھلی کی زبان کا وزن کس جاندار کے وزن کے برابر ہوتا ہے؟ جواب: ویل مچھلی کی زبان کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا کر سولی دے دی گئی تھی؟ جواب: مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا، اس لیے یہودوں کو گرفتار کر کے سولی دے دی گئی تھی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام کیا ہے اور ان کو ادریس کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اصل نام اخنوخ ہے اور ادریس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے درس کتاب دیا۔ سوال: انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا گیا تھا؟ جواب: انسان پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قزاقستان ہے۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ جواب: نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ سوال: کس نبی کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ اپنی بھوک مٹا دیتے تھے۔ سوال: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہاں مدفون ہیں؟ جواب: خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ سوال: اسلام سے پہلے کس مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا؟ جواب: اسلام سے پہلے محرم کے مہینے میں لڑائی جھگڑے کو ممنوع سمجھا جاتا تھا۔
सवाल आधा कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब आधा कुरान सूरत ज़लज़ाल को कहा जाता है। सवाल कुरान मजीद में किस वाहिद आदमी को उसकी कुनियत से याद किया गया है? जवाब कुरान मजीद में अबू लहब को उसकी कुनियत से याद किया गया है। सवाल वो कौन सी नमाज है जिसकी एक रकत में दो के बजाय चार सजदे करते हैं? जवाब वो नमाज जिसमें सजदा सहू किया जाए इसकी आखिरी रकत में चार सजदे होते हैं। सवाल मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद कब रखी थी? जवाब मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की बुनियाद रब्बिल अव्वल के 1 हिजरी में रखी थी। सवाल अफ्यून की पहली मर्तबा बतौर नशावर दवा किस मुसलमान साइंसदान ने इस्तेमाल की? जवाब अफ्यून की पहली मर्तबा बतौर नशावर दवा साइंसदान अल बेरूनी ने इस्तेमाल की। सवाल हजरत हवा के बतन से कितने बच्चे पैदा हुए? जवाब इब्ने जरीर तबरी ने कहा है कि हजरत हवा के बतन से 40 बच्चे पैदा हुए और दूसरा कौल यह है कि 120 बच्चे पैदा हुए। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा किस साबित से तहरीर करवाया था? जवाब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया का पर्चा अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से तहरीर करवाया था। सवाल गुज़श्ता दौर में हबशों के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब हबशों के बादशाह का लक़ब गाना होता था। सवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की कितनी मंजिल बनाई थी? जवाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की 5 मंजिल बनाई थी। सवाल इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम दर्ज है? जवाब इंजील में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम फारकलीद दर्ज है। सवाल क्या आप बता सकते हैं औरत किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब औरत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। सवाल कौन से दो पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली?
जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम दो पैगंबर ऐसे हैं जिनको बचपन में नबूवत मिली। सवाल, किस पैगंबर के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। सवाल, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत किस नबी के जैसी बना दी जाएगी? जवाब, जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती की जिसामत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जैसी बना दी जाएगी। सवाल, किस नमाज की आखिरी सब ज़्यादा अफजल होती है? जवाब, नमाज जनाजा की आखिरी सब ज़्यादा अफजल होती है। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसके नाखून नहीं होते? जवाब, वो जानवर मेंढक है जिसके नाखून नहीं होते। सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क कौन सा है? जवाब, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क जापान है। सवाल, कौन सी फ़र्ज नमाज कज़ा करने का गुनाह नहीं होता? जवाब, फ़र्ज नमाज जो भूल कर कज़ा हो जाए और याद आने पर अदा कर ली जाए, इस नमाज का गुनाह नहीं होता। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसकी एक रकत में दो के बजाय चार सजदे करते हैं? जवाब, वो नमाज जिसमें सजदा सहू किया जाए, इसकी आखिरी रकत में चार सजदे होते हैं। सवाल, कौन से नबी थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे जो लाठी पर टेक लगाए थे कि इनकी रूह कब्ज हो गई। सवाल, अल्लाह ताला के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने कितने रोज़े रखते थे? जवाब, अल्लाह ताला के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने तीन रोज़े रखते थे। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी जगह नापसंद थी? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजार नापसंद थे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार किस चीज़ को कहा है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का सरदार नमक को कहा है।
सवाल, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है? जवाब, जुल्करनैन का लफ्ज़ कुरान पाक में 3 जगह इस्तेमाल हुआ है। सवाल, परिंदे किस नबी पर हर वक्त साया रखते थे? जवाब, परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर हर वक्त साया रखते थे। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी में किस बीवी ने आपका आखिर तक साथ दिया? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी में आपकी बीवी रहमा बीवी ने आपका आखिर तक साथ दिया। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन रहे? निकालने वाले का नाम क्या था और कहाँ का था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तीसरे दिन निकाला। अहले सैर ने लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने वाला मालिक बिन दायरा अल-ग़ज़ाई था और ये अरब का बद्दू था। सवाल, किस लश्कर के सलार एक आज़ाद करदा गुलाम थे? जवाब, ग़ज़वा मूता ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लामी लश्कर के सालार थे। सवाल, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने इलाके के लिए थी? जवाब, जिन शहरों में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम किया इनकी तादाद कम व बेश 200 थी। सवाल, कितने पैगंबरों के नाम उनके पैदा होने से पहले रखे गए? जवाब, 5 पैगंबरों के नाम उनके पैदा होने से पहले रखे गए। सवाल, इंसान का कौन सा अमल ऐसा है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है? जवाब, इंसान का मिसवाक करना ऐसा अमल है जो शैतान को गुस्सा दिलाता है। सवाल, किस मजहब के लोग खुद को पैदाइशी गुनहगार कहते हैं? जवाब, ईसाई मजहब के लोग खुद को पैदाइशी गुनहगार कहते हैं। सवाल, वो कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन नहीं होती? जवाब, मेंढक है जिसकी गर्दन नहीं होती। सवाल, अल्लाह ताला ने दुनिया में कितनी इकसाम की मखलूक पैदा की है? जवाब, अल्लाह ताला ने दुनिया में 18,000 इकसाम की मखलूक पैदा की है।
سوال: اللہ پاک نے تمام انسانوں کو ہمیشہ کی کامیابی دینے کے لیے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہوگی کیا ذریعہ عطا فرمایا ہے؟ جواب: اللہ پاک نے اپنے احکامات اور رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا کہا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: وہ کون سی دھات ہے جو آسمان سے نازل ہوئی؟ جواب: وہ دھات لوہا ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ سوال: کس صحابی کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی؟ جواب: حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی 2 لوگوں کے برابر تھی۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خدوخال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خدوخال حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے جلتے تھے۔